পয়লা মে শুক্রবার মহানগরীর ৪৩ নম্বর কৈলাসবোস স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় পুষ্করলালজি কেডিয়ার নবম পুণ্যতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলো। মনীষিকার আয়োজনে এবং পরম পূজ্য বালব্যাস শ্রী শ্রী কাঞ্চি শর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রয়াত পুষ্করলালজি স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একটি মেগা হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পুষ্করলালজি কেডিয়ার প্রতিমায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে তার আদর্শ ও জ্যোতির্ময় জীবনযাত্রার প্রতি সম্মান জানানো হয়। এই মহতি উদ্যোগের অংশ হিসাবে এদিন চক্ষু বিভাগ, দন্ত বিভাগ, ইসিজি মেশিন এবং জেনারেল ফিজিশিয়ান বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। দিনভর চলা এই স্বাস্থ্য শিবিরে দন্ত চিকিৎসা, চক্ষু পরীক্ষা, চর্মরোগ চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক পরামর্শ ও ইসিজি সহ চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। কেডিয়ার সভা শ্রী বিশুদ্ধানন্দ হসপিটাল, মহারাজা অগ্রসেন ধাম, সুরভি সদন গোশালা এবং মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান হসপিটাল সহ একাধিক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আয়োজক সংস্থা মনীষিকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে পুষ্করলালজি কেডিয়ার সেবামূলক চিন্তাধারাকে পাথেয় করে এই ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ড আগামী দিনেও জারি থাকবে। আমি শুধু বড়াবাজার না, পুরো কলকাতা অঞ্চলে এইরকম মানুষ ছিল না। मतलब ইনি আমরা পার্মানেন্ট স্মৃতি করব এনাকে। আর সবদিকে বড় জিনিস, কোনো পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ না পেয়ে উনি ওর দিকে বেশি কিন্তু কাজ করে গেছে মানুষের জন্য। আর বড়াবাজারে বৃহত্তর অনেক সংস্থা আজকে ওনার আশীর্বাদে, ওনার বীজ উনি দিয়েছেন কার্যকর্তা রকম কাজ করতে। আর কোনো কাজকে কোনোদিন কার নাম বলিনি, বলে আমরা চেষ্টা করবো তারপরে ঠাকুর দেখবে। আর ঠাকুর সত্যি ওনার কাজে চলে আসতো। আর আজকে আমার খুব খুশি হচ্ছে কি ওনার ছেলে, ওনার পুরো পরিবারটা এই কাজকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে এখানে আমরা 3টা কাজ করলাম। আপনার এই একটা আই চেক আপ মেশিন আছে, তারপরে একটা ডেন্টাল মেশিন আছে, তারপরে টেকো আছে। এইসব কাজ দেখুন, মানুষের তো সবসময় দরকার থাকে। আজকে এখানে হয়ে যাচ্ছে, বিশুদ্ধানন্দের টিম আছে, আমাদের সবাই পরম শ্রদ্ধে মহারাজ শ্রীকান্তজি, মহারাজ বালব্যাসজি শর্মাজি উনি আছেন, ওনার আশীর্বচন দিয়ে প্রোগ্রাম হয়েছে। আর কি বলবো, বাস আমরা এটাই বলবো কি মানুষের কোনো চিকিৎসা দরকার না পড়ে, দরকার হলে কিন্তু এখানে এসে চিকিৎসা আর আপনার যাচাই সবকিছু হয়ে। पुष्करलालजी केडिया की आज 9वीं पुण्यतिथि है। वैसे 29 अप्रैल को थी, मगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के चलते हुए आज मनाई जा रही है। और ये पुण्यतिथि के ऊपर में हम लोगों ने आज 3 प्रकल्प उनके नाम से लिए हैं। एक दंत विभाग, एक ईसीजी और एक आई विभाग। पुष्करलाल जी का बचपन से उद्देश्य एक ही था कि मानव सेवा का। और आज के जमाने में जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में या और सरकारी हॉस्पिटल में तो नंबर ही नहीं आता है, जो रेटों से इलाज हो रहा है उस हिसाब से पब्लिक सक नहीं रही है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ अभी फ्री डेंटल, फ्री आई, फ्री ईसीजी, फ्री होम्योपैथिक, फ्री जनरल फिजिशियन विथ मेडिसिन का इंतजाम किया है। और वो काम रेगुलर चलते रहेगा। इसके बाद भी मेडिसिन विभाग में कुछ और बढ़ाने की चेष्टा हम लोग करेंगे, ये कार्यक्रम आगे चलता रहे। पुष्करलालजी केडिया हमेशा कार्यकर्ता तैयार करते थे। आज उनके द्वारा जितनी भी संस्था चलाई गई है या बनाई गई है, वो आज उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से पुष्करलालजी केडिया छोड़ के गए थे। और मनीषिका में ये नया प्रकल्प इसलिए चालू किया गया है कि मानव सेवा के मेन उद्देश्य से आज विशुद्धानंद हॉस्पिटल देख लीजिए, केडिया सभा देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन धाम देख लीजिए, मातृमंगल प्रतिष्ठान है, नागरिक स्वास्थ्य संघ है, सुरभि सदन गौशाला है, सब पुष्करलाल जी की ही मतलब कार्यकारिणी में चला है पूरा।
और अभी भी वैसी चल रही है। बाबूजी का परम उद्देश्य लक्ष्य यही था, परोपकार परमो धर्म। तो उनके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था, उसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो आज हम भी उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज मनीषिका, आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। मनीषिका ने उन्हीं की बनाई सामाजिक संस्था है। इसमें आज डेंटल डिपार्टमेंट का, आई डिपार्टमेंट का और फ्री ECG कैंप, मतलब तीनों चीज की सेवा, फ्री मुफ्त सेवा आज से बाबूजी की 9वीं पुण्यतिथि पर शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ये सेवा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम आगे से आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते रहे, सबकी सेवा करते रहे। हमारे भी जीवन का यही उद्देश्य है कि हमें भी मानव सेवा करनी है। यंग जनरेशन के लिए ये बाबूजी ने तो यही बताया है कि सेवा से बढ़कर धर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कर्म नहीं। आज यंग जनरेशन से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो भी समाज की सेवा में जितना हो सके, पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सके। आज को कुछ किसी का कोई सामान गिर गया उसको उठा के दे दो, वो भी सेवा है। कोई गिर गया उसको उठा के बैठा दो, ये भी सेवा है। मतलब जितना जिसको मौका सेवा का मिलता है वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। संगीता केडिया। मनीषिका के द्वारा आयोजित आज दंत चिकित्सा विभाग और नेत्र चिकित्सा और हार्ट चिकित्सा विभाग की 3 प्रोजेक्ट आज शुरू हुए मनीषिका में, जो सबके लिए और सदा उपलब्ध है। सब बच्चों कोई भी आकर यहाँ इलाज करा सकता है। उनका हृदय इतना बड़ा था कि समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो, और वो यही कहा करते थे। मेरा उनके जो 5 दशक से उनके साथ रहने का मौका लगा, और इसके साथ साथ धर्म, कर्म, पूजा पाठ और हर मानव में ईश्वर का दर्शन करना, सेवा के द्वारा उसको महान बनाना, यह उनकी महानता रही। उनको आज मनीषिका बारंबार प्रणाम करती है। पुष्कर जी केडिया की पौती है। हम सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे दादाजी ने जो किया था शुरू, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और आज जो उद्घाटन हुआ है उसको लेके भी हमें बहुत गर्व है। और हम सबको ऑल द बेस्ट और बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आज हमारे परम श्रद्धेय पुष्करलाल जी केडिया की 9वीं पुण्यतिथि के आयोजन पर के अवसर पर ये एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उनका जो हमेशा से ध्येय रहता था सेवा का, तो सेवा के आज 3 नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं। एक आईज का, एक डेंटल का और एक हार्ट का ECG वगैरह का। वो तीनों प्रकल्पों का आज उद्घाटन हुआ। इतने लोग आए यहाँ और सबने आदरणीय पुष्करलाल जी को श्रद्धांजलि दी। और मनीषिका पहले से भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्य कर रही है और हम सब इसमें भागीदार हैं। और सबसे मेरा अनुरोध है कि वे इन सेवा प्रकल्पों से जुड़े, और जिससे कि हम उत्तरोत्तर इसकी उन्नति कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा प्रदान कर सके। कुमार केडिया है। समाज से जुड़ने का मौका पुष्कर के साथ में मिला और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चल पा रहे हैं, इसमें खुशी है। उतना तो नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाते हैं, बट जितना भी कर पा रहे हैं उनके द्वारा दिखाए गए, समझाए गए। सबसे बड़ी खासियत उनमें ये थी कि वो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी लिमिट से ज्यादा काम कभी नहीं बोला। मैं कितना काम कर सकता हूँ ये उनको पता था, तो कभी भी कार्यकर्ता उनको छोड़ के नहीं गया। डर नहीं रहा कि जाऊंगा तो ये काम बोल देंगे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं था। और दूसरी, हमने कभी उनको सजेस्ट किया एज ए कार्यकर्ता कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने उस पर चर्चा की और यथासंभव उन्होंने उस पर कार्य किया। तो रियल में उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चल पा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए, जिस युग में वो थे अभी नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं है। उनके द्वारा दिए गए मार्गों पर चलकर समाज की सेवा कर सके, यही उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। मनीषिका हमेशा से समाज के प्रति जुड़ी रही और आगे बहुत काम करेगी, ये शुभकामनाएं हैं मनीषिका को। और आप सबको भी, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।